Hello everyone. Today we will start 11th chapter of reader book named From Balloon to Aeroplane Part 1. So in this chapter we will read about the journey from balloons to aeroplane. So let us start reading this. Let us read the first part of this fascinating journey from balloons to aeroplane. It deals with the early experiment with hot air balloons and airships. Whenever men saw birds flying, they dreamed of flying like them. They began by flapping their arms like birds and jumping. They could not fly, but some of them must have ended up in the bed with broken bones. जब भी एक मैन ने बर्ड की तरह उड़ने का ट्राई किया या उनके उड़ने की तरह सपना देखा, they began by flapping their arms like birds and jumping. तो उन्होंने अपनी आर्म्स को फैलाया और बर्ड्स की तरह उड़ने के लिए जंप किया. बट दे कुड नॉट फ्लाई. दे ऑलवेज गेट फेल्ड. Even some of them must have ended up in the bed with broken bones. Next they thought of trying feathers. Some adventurous man made large feathery wings, strapped the wings onto their arms and tried to jump into the air, but nobody could leave the ground. And they also try to flying like birds, so they add feather to their bodies, but they also get failed because nobody could leave the ground. Some men thought that if they could jump from a high place with their wings on, they could stay in the air. They tried but plumped on the stony ground and got hurt. None of methods they tried proved successful. और कुछ मैन ने ट्राई किया कि वो एक हाई प्लेस से जंप लगाकर अगर विंग लगाकर उड़ने की कोशिश करें, so they can, but they also plumped on the stony ground. They also fall down on the stony ground and got hurt. No method was successful. One winter night, a man was sitting near a fire to keep warm. As he watched the smoke curling upwards and mingling with the air, he wondered whether it could carry things up with him. One winter night, a man was sitting near a fire to keep warm. Suddenly he saw, जैसा कि उसने देखा कि स्मोक ऊपर की तरफ उड़ रहा है और एयर के साथ मिक्स हो रहा है, तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि क्या ये स्मोक अपने साथ कुछ थिंग्स भी लेकर जा सकता है. ही स्टिच्ड ए सिल्क बैग, हेल्ड इट विद इट्स माउथ फेसिंग डाउनवर्ड्स एंड अ लिटिल फायर बिलो इट. As soon as some smoke collected in the bag, it began to rise. This experiment was beginning of hot air balloons. तो उसने क्या किया, एक सिल्क बैग को स्टिच किया और उसका माउथ नीचे की तरफ रखा और वहाँ पर आग लगाई, जिससे क्या हुआ कि जैसे ही उस सिल्क बैग के अंदर स्मोक इकट्ठा हुआ, इट बिगेन टू राइज, तो वो उठने लगा. दिस एक्सपेरिमेंट वॉज बिगिनिंग ऑफ हॉट एयर बलून्स. और यहीं से हॉट एयर बलून्स के एक्सपेरिमेंट की बिगनिंग हुई. देन इन 1783 टू फ्रेंच ब्रदर्स जोसेफ एंड एटिन मोंटगोल्फियर सेंट अप ए शिप, a cock and a duck in a basket hung from a large hot air balloon. 1783 में दो फ्रेंच ब्रदर्स जोसेफ और एटिन ने एक शिप को, एक कोक को और एक डक को बास्केट में डालकर हॉट एयर बलून के थ्रू स्काई में भेजा. द साइड ऑफ अ बलून gently gliding in the air with the animals in the basket attached to it sent waves of excitement all around. जैसे ही वो बलून स्मूथली एयर में गया तो उन्होंने एक साइड ऑफ एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी. द किंग ऑफ फ्रांस, हु वॉज ऑल्सो वॉचिंग द एक्सपेरिमेंट, फेल्ट वेरी हैप्पी और डिलाइटेड. However, after just 8 minutes of flight, the balloon got catch in a tree. The rope used to hang the basket snapped off. 8 मिनट्स के बाद ही जो बलून था वो एक ट्री में अटक गया और उसकी जो रोप थी वो वहीं पर अटक गई, जिससे क्या हुआ कि वो बलून टूट गया. फॉर्चुनेटली द 3 एनिमल्स एस्केप्ड हर्ट, बट बाय लक तीनों एनिमल्स को बचा लिया गया. The experiment was repeated after 2 months, this time with human passengers. 2 Frenchmen went up in the air with a large Montgolfier type balloon. They so flew across for 6 miles and remained in the air for 25 minutes. फिर ये एक्सपेरिमेंट 2 महीने के बाद ह्यूमन पैसेंजर्स पे ट्राई किया गया. 2 ह्यूमन पैसेंजर्स को मोंटगोल्फियर के बलून में स्काई में भेजा गया और वो अप्रॉक्स
10 किलोमीटर और वी कैन से 6 मील्स डिस्टेंस कवर कर पाए in 25 minutes only. And after this slowly the number of people going up in balloons began to increase. After this एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर क्रिएट हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा मैंस को और पीपल्स को बलून्स के थ्रू स्काई में भेजा जाने लगा. Since hydrogen is very light gas and much lighter than air, scientists thought of filling up the balloon with hydrogen instead of air. तो क्योंकि हाइड्रोजन बहुत एक लाइट गैस होती है और एयर से भी काफ़ी हल्की होती है, तो एक साइंटिस्ट के माइंड में आया कि क्यों ना बलून को हाइड्रोजन से फिल किया जाए. दिस साइड चेंज इट पॉसिबल टू स्टे लॉन्गर इन द एयर सो दैट द बलून कैन स्टे लॉन्गर इन द एयर. बट बलून्स हैज़ ए मेजर ड्रॉबैक दैट दे वर एट द मर्सी ऑफ द विंड. लेकिन जो बलून्स की सबसे बड़ी कमी थी वो ये रही कि जैसे ही हवा तेज़ होती थी दे कुड नॉट स्टीयर इन द विंड. Besides, balloons sometimes burst, crashed or catch fire. Balloon journey could not keep people satisfied for long. और इसके अलावा जो बलून्स थे वो बर्स्ट हो जाते थे, कभी उनमें आग लग जाती थी और कभी क्रैश हो जाते थे. तो ये जो था ये ज़्यादा टाइम तक पॉसिबल नहीं हो पाया. Meanwhile, some people were experimenting with other methods of flying. A German army officer, Count Zeppelin, made an airship. तो इसी बीच एक जर्मन आर्मी ऑफिसर ने जिनका नाम था काउंट ज़ेपेलिन, उन्होंने एक एयरशिप बनाई जो कि एक लार्ज एल्यूमिनियम बॉडी से बनी हुई थी जिसकी शेप एक सिगार की तरह थी और उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे जो कि हाइड्रोजन से फिल किए गए थे. इट हैड प्रोपेलर्स ड्राइवन बाय ए पेट्रोल इंजन. प्रोपेलर्स हेयर मीन्स दैट ब्लेड्स ऑफ एरोप्लेन वो उसमें लगाए गए थे जिसके अंदर पेट्रोल इंजन लगाए गए थे. इन 1900 ही फ्लू हिज एयरशिप नेम जेपेलिन बिकॉज काउंट जेपेलिन ने वो एयरशिप बनाई थी तो उस एयरशिप को नेम भी जेपेलिन के नाम से जाना जाने लगा. ओवर अ लेक 20,000 पीपल वॉच्ड एंड चीयर्ड हिम एज हिज एयरशिप सोared हाई अप इन द स्काई. सो देन इन 1900 उन्होंने एक और एयरशिप बनाई जिसको उन्होंने लेक के ऊपर चलाया और उसमें 20,000 पीपल अप्रोक्स थे और वो चीयर कर रहे थे और उन्हें आसानी से स्काई में ले जाया गया. By 1910, Count Zeppelin had succeeded in developing large airships capable of carrying both passengers and goods. 1910 में काउंट जेपेलिन ने एक और एयरशिप बनाई जो कि पैसेंजर्स और गुड्स दोनों को ले जाने में सक्सेसफुल रही. A particularly large German airship, Graf Zeppelin, made over 125 flights across the Atlantic carrying 30,000 passengers in all. फिर जर्मन एयरशिप बनाई गई जिसका नाम ग्रैफ जेपेलिन था. उन्होंने अप्रोक्स 125 फ्लाइट बनाई और 125 फ्लाइट्स बनाई अक्रॉस द अटलांटिक दैट कैरिंग ओवर 13,000 पैसेंजर्स इन ऑल. और वो टोटल 13,000 पैसेंजर्स को ले जा सकती थी. एयरशिप्स हाउएवर हैड टू मेजर ड्रॉबैक्स. दे कुड नॉट बी इजीली कंट्रोल्ड इन स्ट्रॉन्ग विंड बिकॉज ऑफ देयर शेप और ह्यूज साइज. सेकेंडली, सिंस हाइड्रोजन कैन ईजिली कैच फायर दे वर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ बर्स्टिंग into flames. In 1937, the famous German airship Hindenburg caught fire while landing. 36 lives were lost in this accident. एयरशिप्स के भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे और उसमें से कुछ ये थे कि वो भी स्ट्रॉन्ग विंड में स्टीयर नहीं कर पाती थी और क्योंकि उनका बहुत बड़ा और ह्यूज साइज होता था. सेकेंडली, द हाइड्रोजन इज़ अ वेरी लाइट गैस विच कैन ईजिली कैच फायर. सो ये भी डर रहता था कि हाइड्रोजन गैस से अगर एयरशिप को बनाया गया तो उसमें आग लग सकती है. दैट्स वाई ये भी एक पॉसिबल नहीं रह पाया और हिंडरबर्ग नाम की एक एयरशिप थी जिसमें आग लगी इन 1937. अप्रोक्स 36 lives were lost in this accident also. So this was all about this chapter.